Uh, I hope you can see the screen. Okay. Today is Yoga Day, so we wish you a very happy Yoga Day. We wish you a good health on this day and do yoga as it is possible. We'll be sharing some experts lecture in the evening today. Okay. Coming back to thin film, we're discussing about the thin film, and the thickness of the thin film was considered to be कितना दिया था हमने? कितना लिया था? Of the order of भूल गया क्या? Any chat message? No. What was the order of thickness? कितना था order? चेक करो आपने रजिस्टर में लिखा क्या? Please talk to me. किसी को याद नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? 1.5 watt gram kilogram. So the purpose of keeping the recording is the same. If you just forget sometime, you can just go through it again and again. Even at least that small portion. It's not 1.5. I told you last time that the thickness of the thin film is typically, it is 5000 angstrom. Okay, that is equal to 500 nanometer. ये हमने कन्वर्शन किया था? Yes, sir. 0.5 micron. 0.5 micrometer. Okay. And that was much less as compared to the human hair thickness. ये भी लिया था हमने. मैंने गूगल में आपको सर्च करने के लिए बोला था. It was somewhere around 100 micrometer. Okay. Somewhere around maybe 70, 80, something like that. It is much less as compared to the. उसके बाद इसका एक्सप्रेशन भी निकाला था हमने. Right? Yes, sir. We take something like this. So if you take, suppose the angle, the first we have to draw the normal. So 90 degree to the horizontal is, or the surface, not horizontal, to the surface is the normal, and let the light is incident at say 30 degree. Now this angle what you are seeing is with respect to the surface. Okay. This angle, whatever you are seeing on the scale, the ruler, but the angle of incidence is taken from the normal, and therefore this angle will be 30 degree. Now, this is the angle of incidence.
and then to make very correct figure, I'm just using the exact number so that the figure becomes very correct. And then we have the reflection. So this will be reflected. And again, obviously, the angle of incidence is same as that of angle of reflection. No, the angle of reflection is same as that of angle of incidence, because incidence will be first and reflection will be later. And then you calculate this angle of refraction. Angle of refraction कैसे calculate किया था हमने? Suppose this mu value is 1.5 for this thin film, and then the thickness of this thin film is a T. यहाँ पे हमने thickness define कर लिया from here to here. Okay, this is the thickness of the thin film, say T, and then we can write sin I divided by sin R equal to mu. Now sin I is sin 30 degree. So 30 degree sin is कितना होता है? Sin 30 1/2. 1/2. 1/2, that is 0.5. Okay. And then we have just, I think we have taken the same example, 0.5 upon sin R equal to 1.5. Okay. So sin R goes here and 1.5 comes here. So 0.5 upon 1.5. So 5 by 15, that is 1/3, 0.33. Okay. So sin R equal to 0.33, and therefore R equal to something, it was something where 20. 19 degree. Yes, sir. Yes, sir. So we took 19.26. very close number as 20 degree. ठीक है, तो हमने 20 डिग्री लिया था, तो इसका मतलब यहाँ पे 70 लेना पड़ेगा मुझे. Now this is the angle of, say, refraction. Angle of refraction. I'll just make it thicker, and then the light will reflect from this point, okay? And it will go in the same direction, just like the reflection at this point. Okay, so let's give this as A, B, C, sorry, C and D. Okay. And now it will refract in air, where the angle will be again 30 degree or 60 degree with respect to the surface. Then we made some construction and so and so forth, and we find out the refractive, we find out the condition for constructive and destructive interference. Okay. Now the second question is, what will happen at point C? Point C पे क्या होगा और क्या हो सकता है? So there is a chance that the light will transmit through this thin film. So if this light goes into air in this side, this is air, this is air, okay, and this is medium. So when the light comes out of the medium, then what will be the angle that it will make with the normal? Let me show the normal here. पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? BC से ये फिर इधर एयर में आएगी, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 30. Yes, it must be 30, right? ये 30 होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं sin A upon sin A, you can apply here also. Only thing is that mu will be 1 by mu, because the refractive index of air with respect to medium, ये हमें लेना पड़ेगा. ठीक है, this refractive index is refractive index of medium with respect to air. एयर का 1 है. ठीक है, फिर उल्टा अगर हो जाए, light is going from say medium to air, then it will move away from the normal. So we will have to take
the 30-degree angle here. Okay? So this is 30 degree. Why it is showing 60? Why it is showing 60? मैं बोल रहा हूँ 30 और ये 60 दिखा रहा है, क्यों? तो एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ही इसका Now there is a possibility at point D that again we'll draw first the what do you call normal, okay, at point D, and again at point D it is possible that it will get reflected back. यहाँ से reflection होगा, ठीक है, यहाँ से. So when it get reflected back, we'll have the same angle, just like here it was R. Here it was R. This is also R. Okay. Corresponding and opposite angle. Okay. This is reflection. तो यहाँ पे R जो है हमारा R is 20 degree. Okay. Approximately. So that will come out like this. Again reflect backward. And then you again at this point say F. Will have again reflection and refraction. Okay, refraction in air, reflection in the same medium. We will not talk about the reflection here. We will talk about the refraction here. So again, it will come out with angle 30 degree with respect to normal. So you can see this is exactly parallel to the other. यहाँ पे ये parallel है दोनों, ठीक है? Suppose this is G. Now you want to find out the phase difference or the optical path difference between these two paths, say CE and FG. So what you can do? इसको अगर आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन. So let us make a construction. Now after this, यहाँ पे अलग अलग जगह वो फेज डिफरेंस जो F और G H, let us consider this point as H. F और H के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वही फेज डिफरेंस यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है? If these 2 points are in phase, then the next 2 points will be also in phase, and next 2 points will be also in phase. So everything will be in phase. Okay. So if you are watching this film from this side, okay, इधर से आप अगर देख रहे हैं, तो then it will be bright. But suppose the phase difference is out of phase, then it will be appear as dark. And of course, if the phase difference is in between, then intensity will vary. ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? Now just focus on the reflection at point C and point D. C point और D point पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बारे में सोचते. Now what is the difference of these two and previous case the points were B and D. Okay? No, B and C. Okay? B से एक रिफ्लेक्शन हुआ था, C से एक रिफ्लेक्शन हुआ. So B and C. इसमें रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? Anybody? I hope I'm still audible. Sir, can you please repeat once? Yeah, sure. देखो प्रीवियस केस जो हम कंसिडर कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, रिफ्लेक्शन इस साइड में सेम मीडियम एयर, ओके. So in that case we talk about the reflection at point B,
यहाँ पे, एंड देन एट पॉइंट सी। तो यहाँ से एक रिफ्लेक्शन हुआ इस तरफ, ये रेड कलर से जो दिख रहा है लाइन, और दूसरा रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ, सी पॉइंट पे आके फिर इधर गया और एयर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ सी पॉइंट पे। सो दैट इज द प्रीवियस केस, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन फिल्म को आप जिस जिस मीडियम से वो लाइट आ रहा है, या जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन से आप देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन ये। बट हियर इन दिस केस it is not transmitted case. So light has incident, then it has transmitted, then it is refracted here. Okay, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है, इधर से, ठीक है। यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। Are you getting my point? C and D. Why we are taking C and D? क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ आया, फिर सी और एफ पॉइंट से वो बाहर निकला लाइट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी एंड सी एंड डी? सी तो कॉमन ही है, तो बी पॉइंट पे आप फोकस करो कि बी और डी में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो उसमें क्या डिफरेंस है। Yes? Anyone? No. It is not total internal reflection. सर एंगल कम है। नहीं, एंगल भी सेम है। हाँ ठीक है, वो बी पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा और डी पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। दैट इज ओके। Yes, that is a difference, but that is okay. That is a simple reflection. Anything else? On computer branch, put some logic. सर जब वो इंसिडेंट हो रहा है तब उसकी कुछ लाइट्स बाहर जा रही है और रिफ्लेक्शन के वक्त भी थोड़े बाहर जा रहे हैं। Can you repeat it? Please repeat it. मुझे समझ में नहीं आया, धीरे से बोलो। हाँ नहीं सर गलत था वो, जानते हैं। नहीं, it's okay. If you make mistake, that is okay. Making mistake is not a big deal. Okay, everybody does it, even I. It's okay. Sir, हाँ, in BC, the reflection is in the medium, and in DF, it is medium to air. yes, very correct, very correct. Then what is the difference? कि ये बी पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इधर जो ऊपर जा रहा है लाइट, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मीडियम। ये दूसरा जो मीडियम है वो इट इज व्हाट यू कैन से डेंसर मीडियम। ओके, so this is reflecting from the denser medium, whereas at D point it is reflecting from the air, that is the medium is more dense, so it is reflecting from the rarer medium. Then what will be the difference? Yes, speed of light will be different. Yes. Anything else? Speed of light will be different. Yeah. Anything else? और सर क्या लाइट different? कम रहेगा डी पे। Yeah, that is okay. What else? और इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी आपको। इस केस में भी हम अगर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते, देन अगेन इट विल बी समथिंग लाइक 2 mu t cos r. ओके, और इसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई थी n लैम्डा और 2n -1 और +1, ओके, लैम्डा बाय। ये कंडीशंस किस किस के लिए? n लैम्डा कंडीशन किसके लिए और 2n -1 लैम्डा बाय 2 ये कंडीशन किस लिए?
एन लैम्डा डार्क के लिए एन लैम्डा डार्क के लिए थी हमारी, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, क्या सेम आएगा डार्क के लिए आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा तो सेम क्यों आएगा, डिफरेंट आएगा तो डिफरेंट क्यों आएगा? फिर से आप ये पॉइंट्स पे फोकस करो। सी, सी तो ठीक है कॉमन ही हो गया, डी एंड बी, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? मेजर डिफरेंस उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपने जैसे बताया ना, किसी ने बताया अभी कि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या फर्क पड़ेगा? सर पहले रेयरर मीडियम से जल्दी पहुंचेंगी लाइट, जैसे बी से रिफ्लेक्ट हुई तो वो जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर बाद में ये पहुंचेंगी बी वाली। नहीं, नॉर्मली व्हाट व्हाट हैपेंस इज, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना टी वाला, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। इट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, 0.5 माइक्रोमीटर। तो वो पलक झपकते ही वो लाइट तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। एंड इवन इफ इट गेट डिलेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वो हमें तो सिर्फ फेज ही देखना है ना, फेज पे क्या इफेक्ट होगा, फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेज, उस पर क्या इफेक्ट होगा? कुछ नहीं, कुछ ऐसी डायग्राम मैंने ड्रॉ की थी, याद है? ये डेंसर मीडियम है, ये सॉरी ये रेयरर मीडियम, ठीक है। तो दिस इज डेंसर, sorry, let me take this center, and this is rarer. So if the wave comes like this and then it is incident, crust is incident on the denser surface, and the same situation, okay, the wave is coming from say right to left, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन कैसे होगा इसका? I think you should watch the lecture again. एक बार से नहीं होगा, वेरी डिफिकल्ट। सर वो फर्स्ट केस में 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा। यस, वेरी गुड, किसने बताया? किसने बताया, नाम तो बताओ। सर शिवम सर डे। Shivam. I cannot see your name here, so I'm just asking you who is talking. So, good, Shivam, very correct. And here it will be 10. Now, can you see this kind of reflection in second case? डेंसर मीडियम से कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, ये भी रेयरर मीडियम से ही हो रहा है, ये भी रेयरर मीडियम से ही हो रहा है, ठीक है। सो देर इज नो फेज चेंज, फेज जो पहले केस में हमने लिया था ना, देर इज नो फेज चेंज और एडिशनल पार्ट डिफरेंस, देर इज नो एडिशनल पार्ट डिफरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नो, तो हमने पहले केस में क्या किया था, यहाँ पे -λ/2 लिखा था, अब लिखने की जरूरत है। एंड दीज आर द कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क एज इट इज। अगले दिन में थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, ये कंडीशन कैसे आ गई? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क मी अगेन एंड अगेन। Sir, can you please repeat?
Sure. What you want me to repeat? Last point और आप point बताओ कि मैं पूरा repeat last करूँ या point. last point? Okay. In the first case मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन है ये इधर। अब ये रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तो ये डेंसर मीडियम से हो रहा है, मीडियम इज ऑलवेज डेंसर देन द एयर, राइट। सो देयर विल एडिशनल पार्ट, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेट मी ट्राई टू शो यू कि सपोज the wave comes like this, okay, यहाँ पे ट्रफ आ गया, तो इस ट्रफ का कन्वर्शन होगा थ्रस्ट में, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. If the wave is coming like this here, then it will move like this. तो यहाँ पे जब फॉल होगा ट्रफ तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा ट्रफ, अगर क्रस्ट फॉल हो गया तो क्रस्ट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सेम, नो चेंज, सेम थिंग हैपनिंग हियर, सेम थिंग हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी फेज चेंज नहीं होगा जब वो रेयर मीडियम से, सॉरी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी। जब रिफ्लेक्ट होती है तब भी चेंज नहीं होता, तब भी चेंज नहीं होता, ये कंटिन्यू होगा ऐसे, ये वेव विल कंटिन्यू लाइक दिस, something like this, okay, but there is a phase change here at the denser surface, therefore we took additional part difference हमने लिया था, like lambda by 2 plus or minus, तो डिफरेंस है तो पॉजिटिव रहेगा हमें, ठीक है। बट हियर देयर इज नो फेज डिफरेंस, here, and therefore there is no additional path difference, तो एडिशनल पार्ट डिफरेंस नहीं है तो यहाँ हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले हमने यही फॉर्मूला लिखा था 2 mu t cos r equal to n lambda फॉर रिफ्लेक्शन। फॉर ट्रांसमिशन ऑल्सो वी आर राइटिंग द सेम फॉर्मूला, दिस वाज द previously this was the condition for bright and this was the condition for dark, okay, ये bright के लिए थी, ये dark के लिए थी, but since there was additional part difference, then adding this lambda by 2 on right hand side, this became the condition for dark and this became the condition for bright, जो कि ट्रांसमिशन में exactly opposite. Are you getting my point? अब शायद आपको याद आया होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक थीन फिल्म बनानी है इस टाइप से, ठीक है, या और इसका इस साइड से और इस साइड से एट ए टाइम फोटो निकालना है, बताया था, यस और नो? Yes or no? Am I audible? Yes, sir. Okay. So I told you to, अगर नहीं किया होगा तो ठीक है आज कर लेना, ठीक है। So ये थीन फिल्म जो आपको दिखती है इसका इस साइड से और इस साइड से जब आप फोटो निकालते हैं देन यू विल सी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, क्योंकि ये जो है इधर से लाइट जो आ रहा है सपोज फॉर एग्जांपल, तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड दिस इज गेटिंग ट्रांसमिटेड, हो सकता है मिरर इमेज आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो लेट मी शेयर वन इमेज विथ यू, ठीक है। Now this image is actually black and white. So if you talk about say like this, okay, I'm just taking it from a website.
Okay. These are the Newton's rings. And you can see in reflected left hand side, the reflected light, the center spot is dark, whereas on transmitted it is bright. Right? Here you can see the thickness of the bright film is much larger as compared to the dark. It is exactly opposite here. So this is just like a negative or the carbon copy, not carbon copy. What you can say? The negative. Negative पता है आप लोगों को? Yes, no. फिल्टर क्या सर? नहीं, निगेटिव मतलब फोटो जब आप निकालते हैं वो पुराने कैमरे थे, क्या होते थे उसे, फिल्म कैमरा। फिल्म कैमरा में एक निगेटिव आती थी। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस और नॉट। यस सर, देखा है। यस सर। हाँ, तो निगेटिव इन फिल्म कैमरा जो आती थी उसमें अगर मान लो कि आपके हेयर्स ब्लैक है तो वो वाइट दिखते थे, और जो वाइट है वो ब्लैक दिखता, ठीक है, तो थोड़ा सा भूत टाइप दिखता था। एंड वी यूज्ड टू कीप दैट दोज नेगेटिव्स प्रिजर्व्ड so that we can replicate the photo again and again, print कर सकते थे उसको। The same thing is happening here with exactly the negative of the reflected and transmitted, okay? They are exactly opposite. तो अगर आपको यहाँ पे डार्कनेस मिल रहा है न्यूटन्स रिंग में कहीं पे भी, you take any point, then you can make sure that it is bright in the transmitted. ठीक है, Are you getting my point? ये न्यूटन्स रिंग का हो गया, न्यूटन्स रिंग का हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। पक्का 100%? Okay. Now let me ask you a question. ठीक है, सपोज एक गोल्ड फॉइल लिया आपने, गोल्ड फॉइल, एंड यू पास द लाइट थ्रू दिस फॉइल। फॉइल लो या प्लास्टिक का कोई ये ले लो। नाउ इन रिफ्लेक्टेड केस, रिफ्लेक्शन ऐसे एक फॉइल ले लिया आपने, ठीक है, और सपोज माय हैंड इज दिस फॉइल, and then in reflected case you are seeing golden yellow color. तो ट्रांसमिटेड में आपको कौन सा कलर दिखेगा? अभी मैंने बताया आपको। सर एक बार रिपीट, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपने एक गोल्ड फॉइल ले ली, गोल्डन कलर की एक फॉइल ले ली, ठीक है, और उस पर गोल्डन कलर का लाइट इंसिडेंट किया इस साइड से, ठीक है, तो इस साइड से आपको वो फॉइल पूरा का पूरा गोल्डन दिखेगा। इस साइड से कौन से कलर का दिखेगा? इट इज अ थिन फिल्म। आपके पास 3-4 ऑप्शन, एक तो गोल्डन येलो ही दिखेगा, दूसरा डार्क दिखेगा, तीसरा आई डोंट नो, डार्क दिखेगा। वो डिपेंड करता है ना सर कि गोल्ड की फिल्म अगर थिन हुई बहुत ज्यादा तो फिर वो मतलब लाइट भी आ सकता है गोल्डन अंदर, फिर जो अपन उस पे ये कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, वो तो थोड़ा सी ब्राइट भी दिख सकती पीछे से, एकदम तो डार्क नहीं दिखेंगी अगर थोड़ी we'll take आइडियल सिचुएशन। हम आइडियल सिचुएशन लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, जहां पे आपको ब्राइट दिख रहा था रिफ्लेक्टेड केस में। ये देखो, ये डार्क के बाद जो रिंग आ रही है पूरा ब्राइट दिख रहा है, ठीक है, उसका थिकनेस भी काफी बड़ा है। यहाँ पे देखो ये डार्क दिख गया। तो आइडियली
ठीक है, ये हमें 100% डार्क नहीं दिख रहा है, दैट इज डिफरेंट पार्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100% डार्क दिख रहा है, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दैट इज ओके, दैट मे बी ड्यू टू some lacunas, okay, but if you are seeing something bright in reflected case, make sure that the same thing at the same time you will be seeing dark in the transmitted case. समझ में आ रहा है? यस अगर सर। नहीं आएगा तो आप वो जो विंडोज आती है ना आजकल, विंडो पे कुछ शीट रहती है, ग्रेइश कलर की शीट रहती है, ठीक है? आप उसको अगर दिन में देखेंगे तो आपको बाहर से, जब आप देखते हैं बाहर में लाइट ज्यादा है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्टेड दिखेगा, सिल्वर काइंड ऑफ, मतलब पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसा दिखता है। जबकि आदमी अगर अंदर बैठा है तो अंदर से वो बाहर का क्लियरली देख सकता है, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता। देखा है ऐसे बड़े बड़े होटल Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, और अगर रात में देखा जाए तो बाहर लाइट नहीं है, सपोज लाइट अंदर है, नाउ द थिंग इज डिफरेंट, अपोजिट हो जाएगा। रात में क्या होता है, रात में अंदर से बाहर का नहीं दिखेगा, बाहर से अंदर, हाँ लाइट अंदर है, तो लाइट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम इनसाइड टू इनसाइड, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अंदर से बाहर का कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन बाहर से अंदर का सब कुछ दिखेगा। करके देखना आप घर में, अगर आपके पास है ऐसा कुछ ग्लास, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग, दैट इज अ थिन फिल्म, दैट इज थिन फिल्म। जैसे आप इसका देख लो ना, कार का, कार में जब आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो दिन में ट्रैवल करते हैं तो आप बाहर का, सॉरी अंदर से बाहर का देख सकते हैं, बाहर लाइट ज्यादा है, राइट। इवन इन बस में भी ऐसे होता है, रात में आप देखोगे बस का लाइट अंदर से चालू है तो आपको रिफ्लेक्शन दिखता है, बाहर का नहीं दिखता। बाहर का देखने के लिए फिर आपको उसके पास जाके देखना पड़ता है। दैट इज अ थिन थिंग, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आ गया धन क्लियर? ठीक, दिस इज अबाउट न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग हमने पढ़ा नहीं है, but that is the condition what that I just wanted to tell you. Let me make it smaller. So that means if you talk about say reflection, so interference due to or reflected wave, interference is taking place in the reflected side. तो अगर यहाँ से लाइट आ रहा है तो इस साइड में आप इधर से देखो, ठीक है, और ट्रांसमिटेड मतलब ये इधर गया इधर गया, दिस इज ट्रांसमिटेड, is reflected and is transmitted. So in case of reflection, what is happening? This is 2 mu t cos r equal to 2n plus 1 by 2 lambda and 2n, sorry, not 2n, n lambda simply. This is the condition for, ये ऊपर की कंडीशन किसके लिए है? ये हमने Bright सैटरडे, for- हाँ ब्राइट के लिए सैटरडे को पढ़ा, दिस फॉर रिफ्लेक्टेड केस, ओके, एंड दिस विल बी डार्क। बट इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसमिटेड केस, तो ट्रांसमिटेड में क्या हो जाएगा? दिस कंडीशन इज फॉर डार्क and this condition is for bright, and therefore whatever the pattern you see, it is complementary. Complementary मतलब वो नहीं जो होटल में मिलता है। Suppose something like this. Now suppose this is dark and bright bands. अगर मान लो कि ऐसे कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है,
और दिस इज इन रिफ्लेक्टेड केस। तो ट्रांसमिटेड में क्या होगा, एग्जैक्टली सेम पैटर्न, सेम थिकनेस, सब कुछ सेम रहेगा, ये यहीं पे आएगा, ये यहीं पे आएगा, ये यहीं पे आएगा। बट नाउ दिस विल बी डार्क एंड wherever there is bright it will be dark, wherever there is dark it will be bright. आगे ध्यान में, यस सर। मजेदार चीज, मजेदार चीज, बहुत अच्छा लगता है ये। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है। Where do you use these thin films? नहीं, अभी बताना नहीं है। In house, in industry, and in computer engineering. You are computer engineers. टेंस सही है, सही है टेंस। You are computer engineers. Yes, no. अरे इंग्लिश पढ़ रहे हो ना। यू आर, मैं बोल रहा हूँ, यू आर कंप्यूटर इंजीनियर। तो टेंस सही है कि गलत है? यू विल बी कंप्यूटर इंजीनियर, ये बोलना पड़ेगा। सर यू विल बी। नहीं, यू आर ऑलरेडी, यू आर कंप्यूटर इंजीनियर। आपने एडमिशन दे दिया मतलब आपको डिग्री मिलने वाली है। बट इफ इट इज वर्कफुल और नॉट, दैट यू हैव टू डिसाइड। फ्यूचर कंप्यूटर इंजीनियर, नो, यू आर। रिमेंबर माय वर्ड्स, you are computer engineer, so you have to think every time कि इसका मेरे ब्रांच से क्या रिलेशन, एवरीथिंग, whatever it may be, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं कुछ भी हो। so where I am going to use this, or where can I use this? It is not always software related. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोचो और फिर मुझे बताओ। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन?